Okay, fine class. Today we are going to discuss with the case study of Jeff Bezos. I hope the screen is clear. Okay, Praful, please start. Hello, Praful. नहीं है, नेट इशू है. ओके फाइन. मुस्कान मल्होत्रा, माइक ऑन कीजिए. Jeff Bezos' success story. Jeff Bezos has become a household name now, and why he shouldn't it when the man blessed with extraordinary business acumen is hard to displace from the number one spot on the world's richest men list, a feat which Elon Musk achieved, though only briefly. Be it e-commerce, online video and audio streaming, newspaper printing, or space exploration, there is hardly any niche that Jeff Bezos has missed. In this success story post, we'll take a good look at the journey of Jeff Bezos and the hard work and effort he put into Jeff reach the Bezos. pinnacle of success. Jeff Bezos. Z Bezos. Z. Bezos. Bezos. Bezos नहीं है बाबू. Bezos. Bezos. I mean, ये एक हाउसहोल्ड नेम बन चुके हैं और बिजनेसमैन की कैटेगरी में इनका नंबर वन स्पॉट आता है. वर्ल्ड के नंबर वन रिचेस्ट मैन है और इलॉन मस्क से भी थोड़ा ज्यादा ऊपर. और अब इनकी हर तरह की ई कॉमर्स में ऑनलाइन वीडियो और ऑडियो स्ट्रीमिंग आती है जिसमें ये मार्केटिंग का सारा टारगेटिंग कैसे करना है, प्रिपरेशन कैसे करना है, मार्केट कैसे बनाना है, वो सब बताते हैं. Okay. So let's go to the Jeff Bezos early life and family background. Jeff Bezos देखिए early ये life. सब ना, इसमें एक चीज समझना होगा हम लोगों को कि ओके फाइन, मतलब जैसे स्टार्टअप है, कोई चीज शुरू होती है, इंडिया में भी शुरू हो रही है, बहुत लोग कर रहे हैं. जैसे कि आपका जो अभी अंशु ने कहा बेवकूफ.com, अगेन द आईटी बॉम्बे के लोग हैं और भी लोग और भी बहुत सारा है जो. बट ये ना मतलब ग्लोबल हम लोग नहीं हो पा रहे हैं जैसे पूरे वर्ल्ड में प्रेजेंट है ना. Now, how these people they operate? Again, they are coming from a very humble background, very simple background, a very mediocre background. But how they think and what makes the things possible that they become big global. They are present in every country actually. But I think Jeff Bezos can claim that sun never sets in my empire. The Britishers claim in the past that sun never sets in my empire. So I think Jeff Bezos can also claim. क्योंकि Amazon तो हर जगह पे है ना. So that understand what is their vision, what equation is going in their brain. They become very global. Again, if we say that McD, again if we say that KFC, they started with a very humble background. मतलब एकदम छोटे से शुरू हुआ है, लेकिन वो विजन क्या है कि they become very global. They are now present in almost all the major countries. This is the idea we have to make it out. Okay, Muskan, please. Early life and family background. Born to a teenage mother on 12 January 1964 in Albuquerque, New Mexico, Jeff Bezos got his last name from his stepfather, Mike Bezos, a Cuban immigrant. His mother, Jacqueline Gies, was only 17 years old when Bezos was born. His biological father, Ted Jorgensen, too, was just 19 years old then. To earn some extra cash, Bezos, still in his teens, spent a summer working at McDonald's. He, however, did not like it at all. The following summer, he, along with his girlfriend, created an educational summer camp named the Dream Institute for students from 4th to 6th grade.
ओके I फाइन। mean एक जनरल फैमिली अब में यहाँ पे भी एक इंटरेस्टिंग है कि अलोंग विद हिज गर्लफ्रेंड, ठीक है, तो भाई अभी जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है वो घूमते रहते हैं लोग, बट लुक एट दिस पर्सन, मतलब उसने स्ट्रेंथ बनाया और मल्टीप्लाई कर दिया, 1+1 11 की टीम बना दिया। इट वाज जस्ट नॉट डेटिंग एंड ऑल। ये भी हम अपफ्रंट बोल रहे हैं। खैर, it's all about winners don't do different things, they do things differently. In spite of dating, he did what he did with his girlfriend, of course. Educational camp named the Dream Institute for students from youth to 6th grade. This एकदम सिंपल सा है, इसने काम किया। That is something visionary. Okay, fine. Please proceed. Education. education. As a teenager, Bijus moved to Miami with his family, where he developed a passion for computers. He reportedly graduated valedictorian of his high school. Bezos then graduated with a degree in computer science and electrical engineering from Princeton University in 1968. From the college days itself, Bezos has been very interested in finding out how things work. Apparently, this unending zeal to know and innovate has been the key factor behind his overwhelming success. ये लाइन को बाबू मतलब दिमाग में लिख लीजिए आप लोग, ये बहुत शानदार बात लिखी हुई है। फ्रॉम द कॉलेज डेज इटसेल्फ, जब जेफ बेजोस साहब कॉलेज में थे, ठीक है, ये सभी के लिए और एक्चुअली मेरे लिए भी है, ये लाइन आप लोग के लिए भी और मेरे लिए भी, कि बेजोस वाज वेरी इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर्क। शुभम, ये लाइन समझ में आया तुमको दोस्त? शुभम, नहीं शुभम, ये लाइन समझ में आया? शुभम, नहीं मतलब कि जैसे बोरिंग रोड में तुम दिन से आ रहे हो जा रहे हो, बोरिंग रोड में क्लास करने आ रहे हो और जा रहे हो, अब कभी तुमने मतलब कोशिश किया है कि बोरिंग रोड कैसे चल रहा है, ठीक है, या कोई भी मार्केट कैसे चल रहा है, ठीक है, उसको समझने की कोशिश किया हम लोगों ने। हाउ फ्रेजर रोड इज वर्किंग, हाउ एग्जीबिशन रोड इज वर्किंग, हाउ फ्लिपकार्ट इज वर्किंग, हाउ स्नैपडील इज वर्किंग, हाउ बेवकूफ.com इज वर्किंग। इसको समझना है कि क्या ब्रेन है, क्या इक्वेशन है, ठीक है। उसको अगर वो फ्रीक्वेंसी अगर पकड़ा गई, अगर बोरिंग रोड की फ्रीक्वेंसी अगर आपको पकड़ा गई, ठीक है, यू कैन मेक मनी, एज सिंपल एज दैट। अब जिन लोगों ने ठीक से नहीं पकड़ा, पकड़ा लेकिन ठीक से नहीं पकड़ा, उनकी दुकान नहीं चल रही है बोरिंग रोड में। लेकिन जिन्होंने सही से फ्रीक्वेंसी को पकड़ लिया, उन्होंने उस चीज का ट्रेडिंग किया है बोरिंग रोड में। बोरिंग रोड एक्चुअली पूरा ट्रेडिंग हब है ना, ऐसे बात कर लेते हैं हम लोग, जहां तुम्हारा डेली आना जाना होता है, ठीक है, कॉलेज एंड ऑल। तो वहां पे ऐसी एक्टिविटी, थैंक यू, उसमें एनालाइज करना होगा कि बोरिंग रोड में ज्यादा क्या चल रहा है और बोरिंग रोड चल कैसे रहा है। दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। यही एग्जांपल बेहतर हम कोट कर सकते हैं। ये बात क्लियर हुई प्रफुल्ल? यस यस इस माइंडसेट में आना पड़ेगा बाबू कि एक्चुअली बंबई शहर जो है ना वो कैसे चलता है, बंबई शहर है क्या, उसको डिफाइन करना होगा। बैंगलोर जो शहर है, कलकत्ता जो शहर है, वो कैसे चल रहा है ये पकड़ना होगा। यही सब सारी बात ना इन लोगों ने पकड़ा, जो क्या नाम है उनका, बेवकूफ.com का, अंशु रानी, एक सेकंड, ये प्रभ किरण एंड सिद्धार्थ। अब प्रभ किरण एंड सिद्धार्थ ये दोनों आईटी बॉम्बे के हैं, तो आईटी बॉम्बे को पढ़ाई करके फिर ये आराम से नौकरी करेंगे, सारी चीज करेंगे, ठीक है। लेकिन इन दोनों बंदों ने ना, पहले देखिए प्रभ किरण स्टार्टेड हिज लस्सी वेंचर, वो पहले उसने लस्सी बेचना, मतलब आईटी बॉम्बे से पास करने के बाद लस्सी बेच रहा है। अब जाहिर में एक्चुअली ये काम समझ में नहीं आ रहा है कि ये लस्सी को बेच रहा है, बट ये उसका मैथमेटिकल ब्रेन है जो ऑपरेट कर रहा है। उसके बाद देन आफ्टर सम टाइम extend their respective careers and you decide to launch a business of t-shirt printing। मतलब फ्रॉम आईटी बॉम्बे और टी शर्ट प्रिंटिंग, मतलब हमको मैच नहीं लग रहा है, लेकिन ये मेरा ब्रेन है, ठीक है, जो उतना डेवलप नहीं है, तो इसलिए इसको ऐसा संग रेट कर रहे हैं कि भाई मतलब टी शर्ट प्रिंटिंग आईटी बॉम्बे का मतलब आप काम कीजिए वहां बड़ी कंपनी में। लेकिन उसने पकड़ लिया, ठीक है, जो नस होता है ना, नस पकड़ लिया। ये इस माइंडसेट में आना पड़ेगा। खैर,
इस लाइन को समझिएगा आप लोग. Bezos has been very interested, so you all people have to be very interested. You have to develop your interest in finding out how the things work. काम कैसे हो रहा है. खैर ठीक है, आगे पढ़िए. Professional beginnings. After graduating from Princeton, he worked a number of roles on Wall Street from 1986 to 1994. During this time, he worked with many renowned names such as D.E. Shaw, Bankers Trust, and Fitale. Notably, Bezos became the youngest ever vice president of D.E. Shaw in 1990. Jeff Bezos has always been a risk taker, and also he quit his lucrative job in the financial world and moved to Seattle to try his hand at internet market, which was still in its infancy stage in 1995 by launching an online bookstore named Amazon. अच्छा, रिस्क टेकर का मतलब क्या होता है? ये आकांक्षा कुछ आप बताइए हमको. रिस्क टेकर का मतलब क्या हुआ है? क्या समझते हैं हम लोग? सर जो मतलब रिस्क लेता हो, मतलब नए नए चीजों में हाथ लगाना, जिससे मतलब कंफर्म नहीं क्या हो सकता है, प्रॉफिट होगा या गेन, पर फिर भी उसको लेकर चलना किसी न्यू चीज में हाथ डालना. और जो बिल्कुल तो नया रिस्क, हो. तो ये जो वर्ड है रिस्क, हमको एक्चुअली इससे ना मतलब ये है, मतलब हम बहुत कन्विंस नहीं है कि ये रिस्क टेकिंग नहीं है. रिस्क टेकिंग को कुछ और नाम दीजिए आप लोग. रिस्क टेकिंग को सक्सेस भी कह सकते हैं सर, मतलब अगर रिस्क ले रहे हैं तो चांस है कि हाँ सक्सेस होगा, सक्सेस करेगा. मेरा ये कहना जो है गिरेगा बाबू, वो ही उठ सकता है. नहीं वैसे नहीं है. मेरा ये कहना है कि रिस्क कहीं नहीं है बाबू. रिस्क एक्चुअली ना आपके अंदर में, आपका जो डर है ना वही रिस्क है. जो डर हट जाएगा ना, जो कॉन्फिडेंट है अरे छोड़ो ये चाय चलेगी मेरी, एमबीए चाय वाला, वो रिस्क नहीं है, वो कॉन्फिडेंस है वो उसका कि मेरी चाय चलेगी. ठीक है, तो हमको ऐसा लगता है, मतलब हम जब एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, ये मेरा व्यूज है कि रिस्क जो है वो आपके अंदर में है, इट इज नॉट आउटसाइड. और जो आपका डर है ना वही रिस्क है, वही रिस्क है, वही गिराता है. और जो कॉन्फिडेंट है कि ना ये काम तो चलेगा ही चलेगा. जैसे कार का रीमॉडलिंग, मतलब मैकेनिक का काम हो गया ना, तो दिलीप छाबड़िया साहब, डीसी किट जो आता है. शुभम, डीसी किट देखा हो? डीसी किट के बारे में सुना है? नहीं सर. अरे यार तुम उसका स्टोरी भी तुम कवर करो, तुम उसको तैयार करो. डीसी किट, दिलीप छाबड़िया, हाउ ही स्टार्टेड. ही जस्ट स्टार्टेड विद अ गैराज. और कंसेप्ट क्या था ना वो कि भाई जो भी कार है उसको मॉडिफाई करेंगे हम. ठीक है, अब इसको हम रिस्क टेकिंग कर लेते हैं कि वो बंदे ने रिस्क, भाई साहब ने रिस्क लिया कि भाई लोग मॉडिफाई करेंगे कि नहीं, ऑलरेडी तो कार है. ठीक है, लेकिन ये कंसेप्ट बहुत जबरदस्त चला. तो जबरदस्त इसीलिए चलता है क्योंकि उस बंदे में कॉन्फिडेंस होता है कि ये चलेगा ही चलेगा. और रिस्क कहां पर है कि आपके अंदर में कॉन्फिडेंस नहीं है ना कि चलेगा कि नहीं चलेगा, ट्राई करते हैं, यहाँ पे रिस्क है. ये बात कन्विंसिंग है कि नहीं? बट सर एक कॉमन मेंटालिटी है ना लोगों का कि मतलब बिजनेस है तो रिस्क है, ये एक कॉमन मेंटालिटी. नहीं, उसी रिस्क को तो हम डिफाइन करना चाह रहे हैं बाबू. बिजनेस है तो रिस्क है, बिल्कुल सही बात हो गई. अब है कि रिस्क क्यों है, हम इस पे डिस्कस कर रहे हैं. रिस्क क्यों है मुस्कान मल्होत्रा? रिस्क क्यों है? सर क्योंकि उसके पहले जिन्होंने इस फील्ड में कदम रखा होगा वो सक्सेस नहीं पा सके, इसलिए इसको भी डर है कि मे बी ये भी सक्सेस नहीं मिले. देखिए इसको, हाँ सर हाँ बोलिए. मार्केट में सर इतना कंपटीशन बढ़ चुका है ना सर कि अभी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हम लोग को ये माइंड में रखना है कि उससे बेटर, उससे बेस्ट हम लोग को प्रेजेंट करना है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे प्रोडक्ट को पसंद करें. ठीक है, सर और रिस्क यही होता है ना. कंपटीशन का मतलब क्या हुआ? मतलब दूसरे लोग, Yes, दूसरे sir, लोग. दूसरे लोग यस सर. तो आप जो काम कर रही हैं वो दूसरे लोग के हिसाब से काम कर रहे हैं, इसका मतलब अपने हिसाब से तो हुआ नहीं. No, sir. अपने हिसाब से तो नहीं हुआ. ये लॉजिक समझिए. आप तो कंपटीशन का मतलब आप तो डर के काम कर रहे हैं. हमको तो यही लगता है कि अरे वो उसने इतना अच्छा बनाया, हमको और उससे अच्छा बनाना है, कि उससे और अच्छा बनाना है. ये तो एक तरह का डर भी हो गया ना, और बेहतर करना है. मेरा ये कहना है बाबू, लॉजिक मतलब एक थॉट है कि देयर इज नो कंपटीशन, देयर इज नो कंपटीशन एंड देयर इज नो रिस्क. ठीक है,
वो सब आपका फियर साइकोसिस है। कंपटीशन इज योर फियर। जिनको करना है वो कंपटीशन फील नहीं करते हैं, वो अपने अंदाज में चलते हैं और उसी कॉम्पिटिटिव मार्केट में लीडर बन जाते हैं। हम ये फील कर रहे हैं आज। बहुत दिन से हम नहीं बोला कि कंपटीशन है उसके हिसाब से आपको और बेहतर करना है, ये हम नहीं पढ़ाया आपको, लेकिन आज हम अपनी बात को वापस लेना चाह रहे हैं। ये बात समझ में आई प्रफुल्ल? देयर इज नो कंपटीशन। आप अपना अंदाज और अपने लेन में चलिए, ठीक है, बहुत बेहतरी होगी। मतलब ये बात कन्विंसिंग है कि नहीं? मतलब आई एम आस्किंग। यस सर। पेंटर में बहुत सारे पेंटर हैं, ठीक है, तो क्या पेंटिंग कंपटीशन से बेहतर हो सकता है? जो भी पेंटर है, Okay. जो साहब पेंटिंग करते हैं, तो पेंटिंग मतलब कंपटीशन से बेहतर होता है? No, sir. वो तो क्रिएटिविटी है बाबू। Yes, sir. सर क्रिएटिव आइडिया से भी हो सकता है सर। नहीं, क्रिएटिविटी से ही होता है। वरना एक पोयम जो कवि जो पोयम लिखते हैं वो कॉम्पिटिशन्स को लेकर के फिर लिखते हैं। कवि तो बहुत सारे, एक से एक कवि हैं, लेकिन कोई एक दूसरे का कॉम्पिटिशन फील नहीं करते हैं। उनका अपना अंदाज है, मेरा अपना अंदाज है, सिंपल। इसी तरह से ना ये काम को लीजिए। मतलब रिस्क टेकिंग ठीक है, पढ़ाई में है, बीबीए में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसकी थ्योरी भी है, रिस्क टेकिंग थ्योरी भी है, बट हमको लगता है कि लेट्स हैव अ वॉक, आइए जरा उस दिशा में भी चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। वो वाली बात है, इसको समझना होगा। मतलब हम लोग समझेंगे, हम भी समझ ही रहे हैं एक्चुअली। खैर, ओके, आगे बढ़िए। Laying the foundation of Amazon, Bezos officially registered the name of his online bookstore on 16 July 1995. Amazon, which began from a small garage, gradually expanded operations into a two-bedroom house. Within a snap of just 2 months, the company was recording an average sale of $20,000 each week, thanks to the अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, यूएस में जितना जो चीज शुरू होता है ना, बहुत सारा हम देख रहे हैं कि स्टडी जो किया वो सब गैरेज से शुरू हुआ है। सब लोग गैरेज से ना काम शुरू करते हैं। तो बाबू ये भी फॉर्मूला है एक, अब ये कॉमन सा फॉर्मूला आ रहा है, अब क्या करें? तो तुम लोग भी गैरेज है तो उसको कारवार निकालो, उसको बाहर रख दो और उसके बाद वहां से शुरू करो। अब प्रफुल्ल का गैरेज नहीं तो गैरेज बनाओ, ठीक है? गैरेज पता है ना कैसा होता है? सिंपल दीवार होती है, ऊपर करकट होता है, ढलैया नहीं मिलेगा छत का, कूलर फैन नहीं मिलेगा, कूलर और फैन नहीं मिलेगा। बगल में है ना, तुम आज से उधर ही शिफ्ट हो जाओ। तो तुम आज से उधर ही शिफ्ट हो जाओ, उधर चौकी को लगा लो, ठीक है, बेड लगा लो, अब उधर ही तुम क्लास करो। यू गो टू गैरेज, ठीक है, आगे पढ़िए। The company was recording an average sale of $20,000 each week, thanks to the order that were being shipped not across the United States, but to 45 other countries as well as, and that too without any press promotion. Amazon went public 2 years after its launch स्टार्ट हुआ था। and has been Amazon, growing. एक मिनट मुस्कान, Amazon स्टार्ट विद अ बुक स्टोर, राइट? किताब से शुरू हुआ है ना? यही है ना? Yes, sir. ऑनलाइन बुक स्टोर नेम्ड अमेजन, बस Yes. किताब से शुरू हुआ। तो एक शुरुआत, एक कोई भी एक चीज को पकड़ के शुरुआत तो कीजिए, शुरुआत कर देते हैं, फिर आगे जाकर के फिर उसमें एडिशन करते रहेंगे। शुरुआत करना जरूरी है। खैर, ठीक है, आगे पढ़िए। Amazon went public 2 years after its launch. हाँ, कंटिन्यू। And has been growing steadily ever since, outpacing any competition due to its position. As you already aware, the company is तुम्हारी आवाज by बहुत हो the रही end है of 1998. मुस्कान, माइक ठीक कीजिए। बारिश हो रही है। अच्छा, शुभम, ठीक है, आप थोड़ा होल्ड कीजिए। शुभम माय फ्रेंड। यस सर। प्लीज डू द नीडफुल। कहाँ से सर? लेइंग द Amazon went public 2 years.
Amazon went public 2 years after its launch and has been growing steadily ever since. Outpacing any competitor. तुम्हारा कनेक्शन भी क्लियर नहीं है। प्रफुल्ल, Yes, sir. प्रफुल्ल Yes, sir. पढ़िए इसको। हाँ पढ़िए। Yes. Amazon went public 2 years after its launch and has been growing steadily ever since, outpacing any competitor that tried to pose a threat to its position. As you are already aware, the company did not stop at just books. By the end of 1998, you could also purchase CDs and DVDs from Amazon USA as time progressed. Amazon brought other items on its platforms such as clothes, toys, and electronics, and entered into retail partnerships with many reputed stores. एकदम सिंपल इक्वेशन है। हमको तो सचिन बंसल और फ्लिपकार्ट, ठीक है, उनका भी तुमको सिमिलर लग रहा है। छोटे से शुरू किया, आप इतना पूरा बढ़ा दिया और इतना बढ़ा दिया कि भाई वॉलमार्ट जैसी कंपनी जो वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है, ठीक है, उन्होंने मतलब पेशकश की कि हम खरीदना चाहते हैं आपकी कंपनी। तो ये भी एक पैरामीटर है कि वर्ल्ड नंबर 1 कंपनी हैज कम टू यू टू परचेज। इट मींस कि यू आर समथिंग, यू आर नॉट अ कॉमन थिंग। खैर आगे पढ़िए। Amazon Kindle e-reader and Fire. With the vision to push digital mediums for reading, Amazon launched its first Kindle device designed to mimic ink printed on paper in 2007. The Kindle presumably offered a great alternative to paper, with the option to download thousands of books at the low cost. Besides cost being portable and less straining than reading on conventional digital devices such as mobile phone and tablets. हाँ। Yes, sir. The giant came up with the किंडल एक्चुअली बहुत सक्सेसफुल है। किंडल बहुत सक्सेसफुल है, इस पे सारा ई बुक्स है, दुनिया जहां का सारा बुक है एक प्लेटफॉर्म पे कर दिया, सिंपल। अब जो आपको पढ़ना है आप एक किंडल को आप करके पढ़ सकते हैं। बहुत जबरदस्त चीज है, बहुत जबरदस्त। ठीक है आगे पढ़िए। Under the brand name Fire, the HD model of the tablet launched in the following year was designed to give tough competition to Apple iPad. Exactly. मतलब एप्पल आईफोन को कंपटीशन देना बहुत बड़ी बात है। दैट इज स्टीव जॉब। ठीक है आगे पढ़िए। Venturing into the world of drones. Yes. Venturing into the world of drones. Bezos entered into the world of drones through an experimental initiative titled Amazon Prime. Air drones were developed to provide delivery service to customers. At the initiative launch, Bezos had said that these drones could carry up 5 pounds of weight and move it within 10 miles of distance from the company's center. Although the first successfully delivery was made in December 2016, the company is still yet to launch a full-time drone delivery service for its customer in the US and UK. अब ये बात एक देखिए, अब इसमें रिस्क इन्वॉल्व है या मतलब रिस्क इन्वॉल्व है। अरे कहाँ पे रिस्क है? इन्होंने ट्राई कर दिया, ड्रोन से करेंगे हम। अरे स्कूटर मोटरसाइकिल से तो हो ही रहा है, इन्होंने ड्रोन से कर दिया। नहीं अगर नहीं एक्सेप्ट होगा तो ठीक है, इसको बंद कर देंगे, क्या दिक्कत है? ट्राई तो करें। तो एक्सपेरिमेंट करना इज नॉट ए रिस्क। एक्सपेरिमेंट करना इज नॉट रिस्क। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, कामयाब हो गया। अगर ना कामयाब रहता ठीक है चेंज कर लेते वापस से। फिर मोटरसाइकिल तो है ही ना, मोटरसाइकिल तो है ही आपका डिलीवरी करने के लिए, वो वैन तो है ही। लेकिन इन्होंने फिर ना एक देखिए वो ड्रोन से कर दिया, अब वो कामयाब है। रिस्क नहीं है प्रफुल्ल, हम यही तो कहना चाह रहे हैं यार, रिस्क से बाहर निकलो। देयर इज नथिंग कॉल्ड रिस्क यार। Yes. मतलब डू यू बिलीव दैट गॉड इज विथ यू? नो।
Say no. No, sir. No. You don't believe that God is with you, but actually God is with you. Yes, sir. When God is Papa, with you, नहीं, ये ऐसे नहीं है प्रफुल्ल, मतलब भगवान मेरे साथ हैं हर पल। इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? सच बोलो। नहीं sir. ये बात को नहीं मानते हैं। इस बात को मानना शुरू करो बाबू, ठीक है? एवरी टाइम ऑलमाइटी इज देयर विथ यू। व्हेन ऑलमाइटी इज देयर तो काहे का रिस्क? अब तो खेलो आराम से। इसको डेवलप करो, इस कॉन्फिडेंस को। देयर इज नथिंग कॉल्ड रिस्क। साफ बोल रहे हैं, यही तो उस पहले का डिस्कशन था मेरा। रिस्क नहीं है बाबू, कहीं नहीं रिस्क है। रिस्क सिर्फ तुम्हारे अंदर में है। तो तुम्हारे अंदर का जो डर है ना, चलेगा नहीं चलेगा, क्या होगा, लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, ना कामयाब होंगे तो लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, वही रिस्क है, और कोई रिस्क नहीं है। हम नहीं मानते। आप कोशिश कीजिए, आप लेट्स गो ऑन अ वॉक, दैट्स इट। है, आगे बढ़िए। Acquiring Whole Foods grocery chain. In the year Hmm. 2017, Amazon acquired Whole Foods grocery chain for the whopping $13.7 billion and entire cash अब वो deal. अमेजन जानते हो क्या करेगा? अमेजन टीम जानते हो क्या करेगी? जितने भी जो तुम्हारा फ्रिज की कंपनी है ना, फ्रिज, Yes, sir. मतलब ऐसा मेरा मानना है, अब ऐसा हुआ नहीं है, वो जो चल रहा है ना मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब जितना जो तुम्हारा ये फ्रिज है उसमें चिप फिट होगा, ठीक है, और वो कनेक्टेड रहेगा अमेजन से। दैट इज कि वो मैसेज चला जाएगा, लेट्स से कि फ्रिज में अंडा रखा हुआ है ना, तो उसमें सेंसर फिट हो जाएगा, समथिंग लाइक, आई एम नॉट आईटी लिटरेट नहीं है, अंदाजे बोल रहे हैं। तो मान लीजिए 12 अंडा का सेट है, और उसमें जैसे एक टाइमर फिट हो जाएगा कि जैसे ही 4 अंडा बचे ना, तो मैसेज चला जाए अमेजन को कि अंडा खत्म हो गया है, डिलीवर अंडा। अब वो भी कर देंगे वो सब, वो तो करते चले जा रहे हैं, उनको तो रिस्क है नहीं, सारा रिस्क तुम्हारे ही अंदर में है। चलेगा कि नहीं चलेगा? तुम्हारा अंडा तो फूटेगा ही, उनका अंडा चलेगा। ये बात समझ में आया प्रफुल्ल, क्या बोल रहे हैं हमने? Yes, sir. माय फ्रेंड, देयर इज नो रिस्क। हम फिर से बोल रहे हैं, देयर इज नो रिस्क एंड देयर इज नो कॉम्पिटिशन। यू जस्ट स्टार्ट वॉकिंग, दैट्स इट। खैर, आगे पढ़िए। With this acquisition, Amazon began offering grocery deliveries within 2 hours of successfully order placement. Though this is limited for Amazon Prime customer in certain cities only. हाँ, सर्टेन सिटीज है, फिर आगे पूरा यूनिफॉर्म हो जाएगा वो। ओके, ये पढ़िए। एक्वायरिंग द वॉशिंगटन पोस्ट। Acquiring the Washington Post. Bezos acquired the Washington Post in प्रफुल्ल, बेजोस 2013. यार, बेजोस नहीं है दोस्त, बेजोस नहीं है, बेजोस, जेड है, जेड फॉर ज़ेब्रा। फिर जॉस, फिर जॉस, Sir, Bezos. ठीक है, पढ़ो। 2013 and its affiliated publication for $250 billion. The acquisition means the end of the fourth generation version of the Graham family over the Post Corp. नाउ अब देखिए नया वेंचर क्या है इनका। वेंचरिंग इनटू स्पेस फ्लाइट नीश। नीश का मतलब होता है एकदम टारगेटेड, नीश मार्केटिंग एक है, ठीक है, पढ़िए इसको, ये इंटरेस्टिंग है। Venturing into space flight niche. Jeff Bezos has been fond of space exploration ever since his childhood. In the year 2000, he converted this dream into देखो साफ लिखा reality. हुआ है, प्रफुल्ल, शिवम, मुस्कान, मुस्कान एंड मुस्कान, आकांक्षा। जेफ बेजोस हैज बीन फॉन्ड ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन एवर सिंस चाइल्डहुड। अब ये रिस्क है, ये तो शौक है, No, sir. ये तो इसका बचपन का शौक है। अब उसमें रिस्क बोल लो, जैसे हॉबी होता है ना, तो हॉबी रिस्क है। अब हॉबी को कन्वर्ट कर दिया उसने कमर्शियल वर्जन में, सिंपल, ठीक है, पढ़िए। इन द ईयर 2000 Yes, sir. He converted this dream into reality by founding Blue Origin. The company aims at making space tourism
affordable with the help of reusable launches vehicle. For nearly 15 years of the company operated without much budge. It was only in 2016 that Bezos invited journalists to pay a visit to the headquarters of Blue Origin located in Washington. Hmm. He is of the vision that human will one day colonize the space, provided that everybody has access to the more innovative Innovative technologies. technologies. Yes, sir. But technologies currently in development. Bezos has been selling $1 million worth of Amazon share each year since 2007 to fund the rocket startup. Hmm. 2 years मतलब ago, गैरेज से $1 बिलियन है. yes sir, और तुम्हारे पास भी गैरेज है. yes sir. बस सोच ही नहीं है. सोचो. ठीक है, सोचना शुरू करो आज से. पहले तो तुम रूम छोड़ दो. तुम्हारा जो बेडरूम है वो बड़ा अच्छा पर्दा पीछे लग रहा है. तुम निकलो यहाँ से. तुम वहां चले जाओ, गैरेज में चले जाओ, उधर ही. देखो तुम्हारी तरक्की. देखो तुम्हारी तरक्की आ जाएगी. नहीं अभी नहीं, परमानेंटली शिफ्ट होने की बात कर रहे हैं. सर बैठे रहते हैं वहां पर. कुछ शिफ्ट होने की बात कर रहे हैं. तुम उधर ही रहो. ठीक, आगे बढ़ो. 2 years ago, Blue Origin revealed its moon lander and also announced that the company was conducting test flight with its suborbital rocket New Shepard that aims to take a tourist into space for a few minutes. Interestingly, Blue Origin is among the 13 space companies selected by NASA for collaboration on at least 19 projects to reach Mars and the Moon. मतलब लोगों को स्पेस में घुमाना है. ठीक है, ये कम रिस्क है. क्या है ये उसका शौक है बचपन का. हमको करना है तो करना है. ठीक है, और इसको सही करना ही है हमको. वो बंदा कर रहा है. और 13 स्पेस कंपनीज सिलेक्टेड बाय नासा, उसने कोलैबोरेट कर लिया. अब वो कमर्शियल जो स्पेस में नहीं होता है उस तरह से. खैर, ठीक है, आगे बढ़िए. Setting up Earth Fund in his ambitious effort to combat the effect of climate change, Bezos in February 2020 launched $10 billion Earth Fund. Under this fund, grants will be issued to scientists, activities, and other organizations working for the preservation of nature. ठीक है. Early Bezos Day One Fund. Bezos Day One Fund. Earlier, Bezos was often criticized. एक मिनट को. ये आकांक्षा एक मिनट को. आकांक्षा. Yes, sir. हाँ, पढ़ो तो बाबू. Yes, sir. Earlier, Bezos was often criticized for his lack of philanthropic efforts. However, now the scenario is completely the opposite. One of the reasons behind this transformation is Bezos Day One Fund, which provide funding to existing NPOs that cater to homeless families. Through this fund, the Amazon founder aims to create a network of NPO क्या हुआ? Non-profit organizations. नन नहीं है, नॉन. Sorry, non-profit. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन उसको फंड कर रहा है ये. Yes, sir. Through this fund, the Amazon founder aims to create a network of non-profit tier one preschools in communities with low-income individuals. Notably, Bezos has founded this fund with his ex-wife,
Mackenzie, yes, sir. Ex-wife भी थी. Prior to their divorce, he committed a sum of 2 billion from his personal fortune at the time of its launch. Quitting the position of Amazon CEO in February of 2021, it was announced that Jeff Bezos will step down as the CEO of Amazon and instead make a transition to the role of executive chairman by the end of third quarter. Andy Jassy, who will reportedly to be his successor, has been working with the company since as early as 1997. During those years, Jassy served as the technical assistant to Bezos. Personal Jeff life. Bezos' personal life. With his ex-wife, Mackenzie, whom he divorced in 2019, Bezos has 3 sons. The couple also adopted a daughter. Mackenzie and Bezos had met during their time at DE Shaw, where Bezos had serving as the senior vice president and the foreman as an assistant. Mackenzie is now a novelist, best known for her works, The Testing of Lethal Albertride 2005 and Traps 2013. Notably, Mackenzie integral role of initial years of Amazon operation. Not only मैकेंजी नहीं है, आकांक्षा एक मिनट, बाबू मैकेंजी नहीं है, मैकेंजी, जी जेड लिखा हुआ है, मैकेंजी. Not only did she help create Amazon first स्कूल business में तुम लोगों ने संस्कृत नहीं पढ़ा था ना? पढ़ाया तो गया होगा, पढ़ा नहीं होगा. संस्कृत ठीक से पढ़ती या उर्दू ठीक से पढ़ती, 2 लैंग्वेज, तो जबान साफ हो जाती है. पढ़े थे सर. पढ़े थे. पढ़े थे तो ये हाल क्यों है फिर? यही तुम कहना चाह रहे बाबू, ये तुम पढ़ी थी ना, वो उस अंदाज में नहीं पढ़ी थी, उसको जस्टिफाई नहीं किया था तुमने. संस्कृत ठीक से पढ़ती ना तो जबान साफ हो जाती. तो तुम्हारे से शुरू करो फिर से, वो किताब को निकालो, पढ़ो उसको. चलिए पढ़िए, यूट्यूब से सीख लो. Not only did she help create Amazon first business plan, but also serve as the first accountant of the ambitious startup. Jeff Bezos' stake in Amazon came down from 16% to 20%, 16 to 12%, implying the Mackenzie stake came up to roughly 37 billion. Post his divorce, Bezos has been dating television host Lawrence Sanchez, with whom Bezos was allegedly having extramarital affair. The duo made their first public appearance together at 2019 edition of Wimbledon. The bottom line. Many entrepreneurs come and go, but conclusion है. Yes. ये conclusion हुआ. But only a few visionaries leave a lasting impression with their vision and the zeal to grow and innovate. The founder of Amazon, Jeff Bezos, is the perfect example of entrepreneurs belonging to the latter category. Story of Jeff Bezos. Thanks for the reading. But I really hope कि इस केस स्टडी से कोई इंस्पिरेशन मिलेगा. Yes. बिल्कुल सर. That is the idea. That is the idea altogether. Fair. Okay, fine. Thank you. I'm stopping the recording.